Hello everyone. Hello, hello everyone. This side Poonam Grover from St. Andrews College of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. Today I am start with my lecture number 5, which are came under Unit 2 for the ETC 6th semester students. And in my today lecture, I will cover the various topic, that is adaptive delta modulation, mesh filter and its properties, intersymbol interference, and effect of noise in baseband transmission. So these both are came under analysis. With mathematical analysis, we can also describe the intersymbol interference plus your noise. But what do you mean by adaptive delta modulation? So that is an advanced version of your delta modulation. In delta modulation, you will be came under some noises. So that noise will be overcame with the help of your adaptive delta modulation. And what do you mean by mesh filter? So the mesh filter um, is improving the signal to noise ratio at the output. And how, when the signal power is more than your noise power, in that case you can reconstruct the signal in very easy way. So after that you can study the intersymbol interference. Whenever the filter not doing the operation properly, in that case the filter will be enhanced with a intersymbol interference that will be noticed at the output of your filter. So we are study the various steps one by one. So firstly, we can go with your adaptive delta modulation. What do you mean by adaptive delta modulation? So by the use of adaptive delta, what is the difference between a delta and adaptive delta modulation? In delta modulation, you are came with your slope overload distortion and granular noise. So that, what do you mean by slope overload distortion and granular noise? That will be see in the later part of the slides. So here we show the simple diagram for your delta modulation, and here we can, in last we can add a one block, that is called your step size control. So that one like one more block create the difference between your delta modulation and your adaptive delta modulation. यानी कि delta modulation के अंदर हम step size control नाम का कोई block use नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से that block will be only show your delta modulation. But at last we can add a extra block, that is called a step size control. So that step size control will overcome the slope overload distortion and granular noise which are occur in a delta modulation. So that is a simplified block diagram for your delta modulation. Here we represent your signal, that is x of ts. You can convert it into discrete one with the help of your sampler. तो आपने इसको सैंपल्स में कन्वर्ट किया, तो आपका एग्नोल सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स ऑफ एन टी एस। क्लियर। उसके बाद आपने एक एडर लगाया, उस एडर को आप क्या कर रहे हैं, उस एडर को आप इंटीग्रेटर के आउटपुट से जोड़ रहे हैं। क्लियर। तो इंटीग्रेटर क्या करेगा, यहाँ से आउटपुट को इंटीग्रेट करके आपके इनपुट पे अप्लाई कर रहा है, और यहाँ पे इन दोनों का जो ऐड करके सिग्नल बनेगा, दैट इज कॉल्ड योर ई ऑफ एन टी एस। फिर आपने उस एरर सिग्नल को with the help of one bit quantizer की help से quantized value में convert किया. We also, in my previous video, I also discussed the simple you can say PCM, or you can say differential PCM and your delta modulation. I can also create a difference among of three. So you can listen that video more carefully. So after this you can came under the concept of why we use the one bit quantizer here, because in which we can done the one bit sampling at a time. So that's why we can use the one bit quantizer here. So that one bit quantized output again multiply with your impulse train, and that will be show your delta modulated output. So that will be also showing with the help of your mathematical analysis in my previous video. So after this we can add a one block, that is called a step size control. This step size control means, you can say adaptive, we can say you can change the step size as per your error कंट्रोलिंग. सो आप क्या करेंगे, वो जो एरर होता है वो स्टेप साइज के कारण ही आता है। क्लियर। तो अगर आप उस स्टेप साइज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ लास्ट में एक स्टेप साइज कंट्रोल का ब्लॉक लगा देंगे, तो जो दोनों में एरर आया स्टेप साइज का वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई इट्स नेम इज अडप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन. तो सबसे पहले कंट्रोल स्टेप साइज कंट्रोल ब्लॉक का जो फंक्शन है उसको डिक्लेयर करने से पहले, उसको एक्सप्लेन करने से पहले हम इन दोनों नॉइजेस के बारे में पढ़ेंगे कि नॉइज का मतलब क्या है.
देखिए हमारी फिगर में आपका ये जो ये कर्व है दैट इज शो योर इनपुट सिग्नल, और ये स्टेयरकेस जो है दैट विल बी शो योर इंटीग्रेटेड आउटपुट। क्लियर? तो एक्चुअल में जो आपका आउटपुट है, आपका जो इनपुट है वो इस स्टेयरकेस को फॉलो करना चाहिए। क्लियर? लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको फॉलो करने की बजाय जैसे ही आपका जो ये स्टेयरकेस सिग्नल है, अगर वो आपका इनपुट सिग्नल से ज्यादा है, क्लियर, स्टेयरकेस सिग्नल की वैल्यू इनपुट सिग्नल से ज्यादा है तो वो नेगेटिव जनरेट करेगा। यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हुई, कम हुई, तो उसने क्या जनरेट कर दिया, अगेन पॉजिटिव। अगेन फिर कम हुई, अगेन फर्स्ट पॉइंट पे आपका जो इनपुट सिग्नल है वो स्टेयरकेस से कम है, तो उसने नेगेटिव एरर जनरेट किया यहाँ पे, नेक्स्ट पल्स नेगेटिव। क्लियर? उसके बाद जब नेगेटिव आया तो नेगेटिव के केस में क्या हुआ, स्टेयरकेस आपका इनपुट ज्यादा हो गया और स्टेयरकेस कम हो गया, तो उस केस में वो क्या जनरेट करेगा, पॉजिटिव। अगेन क्या हुआ, पॉजिटिव होने पर आपका स्टेयरकेस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इनपुट क्या हो गई है, कम हो गई है, तो उसके केस में फिर उसने क्या जनरेट किया, यहाँ आने के बाद पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और फिर क्या जाएगा, पॉजिटिव। तो इस तरह से क्या हुआ कि फर्स्ट केस में आपका जो है स्टेयर केस है वो इनपुट सिग्नल से कम है, तो उसने नेगेटिव जनरेट किया। अगर स्टेयर केस ज्यादा है इनपुट सिग्नल से तो वो क्या जनरेट करेगा, नेगेटिव जनरेट करेगा। जैसे कि इसमें दिखा रखा है, अगर आपका इनपुट सिग्नल स्टेयर केस से ज्यादा है तो वो प्लस डेल्टा जनरेट करेगा, अगर इनपुट सिग्नल स्टेयरकेस से कम है तो वो क्या जनरेट करेगा, माइनस डेल्टा जनरेट करेगा। लेकिन यहाँ पे तो हर बार आपका स्टेयरकेस काफी कम है इनपुट सिग्नल से, तो उसने 2 डेल्टा और 3 डेल्टा कैसे जनरेट किए हैं, दैट विल बी डिस्कस इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। क्लियर? तो अगर आपको अपने फिगर में ड्यू टू ग्रेजुअली इंक्रीज विद योर इनपुट के कारण अगर आपको जो ये स्टेयर के सिग्नल मिल रहा है वो अगर आपको प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा अगेन प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा की फॉर्म में मिल रहा है, सो दैट शोज योर ग्रेनुअल नॉइज। क्लियर? आफ्टर दिस योर इनपुट विल बी इंक्रीजेस and the staircase signal will be also increases, but in that case your envelope is not follow with your input. It means you can in staircase signal you can notice many time plus delta here, plus delta plus delta plus delta plus delta. Clear? So that plus delta or you can say another one you can see that अगर मैं इस लाइक वेवफॉर्म को एनालॉग इनपुट की वेवफॉर्म को इस तरह से ड्रा कर दूं तो ये स्टेयरकेस उसके अकॉर्डिंग नीचे जाना शुरू हो जाएगा, तो यू कैन नोटिस द डिफरेंस माइनस डेल्टा एंड माइनस डेल्टा। इट मीन्स अगर आप अपनी फिगर में लगातार प्लस डेल्टा नोटिस कर रहे हैं या लगातार माइनस डेल्टा नोटिस कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर स्टॉप स्लोप ओवरलोड distortion, you can say slope overload noise. So these both of the noises will be resolved by the use of ADM or you can say adaptive delta modulation. तो उस नॉइज को रिजोल्व करने के लिए हमने एक स्टेप साइज कंट्रोल का फिनोमिना यहाँ यूज किया है, दैट इज कॉल्ड योर डेल ऑफ एन माइनस वन इंटू में ई एन, यानी कि एक बार हमने स्टेप साइज की पीरियड प्रीवियस वैल्यू को एरर सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई किया, अगली बार हमने स्टेप साइज की प्रेजेंट वैल्यू को एरर सिग्नल की नॉइज प्रीवियस वैल्यू के साथ क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, सो दैट फाइंडिंग योर डेल ऑफ एन। क्लियर? तो अगर आप देखिए अपनी फिगर में जो आपने फिगर पहले बना रखी है, यानी कि जब आप डेल ऑफ जीरो पे है, डेल ऑफ जीरो पे आपको पॉजिटिव एरर मिला है यहाँ पे ये वाला, क्योंकि यहाँ पे आपका इनपुट सिग्नल जो है वो स्टेयरकेस से कम है, तो यहाँ पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इट मीन जीरो पे पॉजिटिव, वन पे नेगेटिव, टू पे पॉजिटिव, थ्री पे नेगेटिव, फोर पे पॉजिटिव, फाइव पे नेगेटिव, लेकिन फाइव पे क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव में मिलता जा रहा है। क्लियर? तो जहाँ पे आपका जो इनपुट सिग्नल है वो प्लस माइनस डेल्टा से ग्रेजुअली इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, उसको हम बोलेंगे स्लोप ओवर सॉरी ग्रेनुअल नॉइज। और अगली वाली फिगर में जो ये वाली चीज आ रही है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा डिफरेंस नोटिस कर रहे हैं अपने इनपुट और स्टेयरकेस में, तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है विद प्लस डेल्टा। अगेन अगर ये दोबारा ड्रा करते हैं अपोजिट साइड में तो लगातार घटेगा। ठीक है जी? तो उस केस में आप क्या नोटिस करेंगे, माइनस डेल्टा, सो दैट इज कॉल्ड योर स्लोप ओवरलोड नॉइज। क्लियर? ठीक है, तो मैंने अपनी फिगर में पहला जो नॉइज आया था वो आपका क्या था, एरर सिग्नल पॉजिटिव आया है, जीरो पे क्या आया आपका, पॉजिटिव आया है, क्योंकि आपने पॉजिटिव पल्स देखी है। ठीक है, तो अगर जीरो पे वो पॉजिटिव आया है तो अगर एरर सिग्नल पॉजिटिव है तो क्या जनरेट करेगा, प्लस वन। अगर वो एरर सिग्नल नेगेटिव है तो क्या जनरेट करेगा, माइनस वन। क्लियर? तो जब एरर सिग्नल पॉजिटिव है तो उसने क्या जनरेट किया, प्लस वन जनरेट किया, इट मीन ई जीरो की वैल्यू क्या आई है, प्लस वन आई है। तो हमने इस एनालिसिस में एन की जगह जीरो पुट करवाया, जिसने क्या जनरेट किया, डेल ऑफ माइनस वन इंटू में ई जीरो। ठीक है, डेल ऑफ माइनस वन इंटू में ई जीरो, ई जीरो क्या है आपका, वन है, तो डेट इज डेल ऑफ माइनस वन इंटू में वन, डेल ऑफ माइनस वन आ जाएगा। अगेन डेल ऑफ जीरो
ठीक है, इनटू में 0 माइनस 1 अगेन e माइनस 1। क्लियर? तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, और यहाँ हमें क्या बचेगा, ओनली डेल ऑफ जीरो। इट मीन डेल ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आई है, डेल ऑफ जीरो के इक्वल ही आई है। क्लियर? तो वो पॉजिटिव में आई है, तो हमने इस वेव फॉर्म को क्या बनाया है, पॉजिटिव बनाया है यहाँ। क्लियर? ठीक है, उसके बाद अगर आप अगली पहला बार पॉजिटिव था, दूसरी बार क्या था, पल्स आपकी नेगेटिव थी। क्लियर? तो एरर सिग्नल भी क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। तो सेकंड केस में जब एन की वैल्यू 1 पुट की तो एरर की सिग्नल क्या है आपका, नेगेटिव है। तो उस केस में जब एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको ये चीजें आ जाएंगी, दैट इज 1 माइनस 1 0 E1 डेल ऑफ 0 E1 माइनस 1 E0। क्लियर? तो E0 की वैल्यू आप क्या बोल रहे हैं, +1। तो यहाँ +1 पुट होगा, +1 इंटू में डेल ऑफ जीरो, डेल ऑफ जीरो रहेगा। और यहाँ पे E1 की वैल्यू क्या निकाली है आपने, -1। -1 इंटू में डेल ऑफ जीरो माइनस डेल ऑफ जीरो, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और आउटपुट पे क्या आ जाएगा आपका, 0। इट मीन्स आपकी वेव फॉर्म अब क्या आ जाएगी, 1 से 0 में चेंज हो जाएगी हियर। क्लियर? 1 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आपने डेल ऑफ 2 की वैल्यू निकाली, तो 2 पे फर्स्ट बार एड सिग्नल पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हुआ, 2 पे फिर क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? 2 पे एरर सिग्नल देखिए क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, अगेन उसने पॉजिटिव की फॉर्म में ड्रा किया हुआ है, तो 2 पे वो पॉजिटिव ही लेके चल रहा है यहाँ। क्लियर? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जो कि उसने लगातार कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव ही शो किया हुआ है, ये वाला पार्ट 2 पे वो मान रहा है कि आपका एरर सिग्नल क्या है, नेगेटिव है। क्योंकि नेगेटिव क्यों है, क्योंकि 2 पे आपका जो है इनपुट सिग्नल है वो स्टेप साइज से कम है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप साइज ज्यादा हो गया और इनपुट सिग्नल कम हो गया, तो उस केस में आपका नेगेटिव एरर जनरेट करेगा 2 पे। तो अगर 2 पे नेगेटिव एरर है तो E2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, -1। अब आप उस इक्वेशन में n की जगह 2 इक्वेट करवाइए। जब n की जगह 2 पुट करवाएंगे आप तो क्या होगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इस इक्वेशन में आपने डेल ऑफ 1 की वैल्यू क्या निकाली है अभी, 0 इंटू में -1, ये सारा फंक्शन 0 हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ डेल 0। तो आप क्या करेंगे, 2 पे अगेन नेगेटिव वेव फॉर्म ड्रा करेंगे अपनी फिगर में, 2 पे नेगेटिव, 2 पे नेगेटिव। क्लियर? क्लियर? देन 3 पे आपका एरर सिग्नल क्या शो कर रहा है, 3 पे वो अगेन नेगेटिव शो कर रहा है। क्लियर? तो अगर 3 पे एरर सिग्नल क्या है आपका, 3 पे आपका एरर सिग्नल क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर? ये वाला 3 पे एरर सिग्नल पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि पिछली वाली वेव से नेगेटिव आया, नेगेटिव को अगली बार में किस में चेंज करेगा, वो पॉजिटिव में चेंज करेगा। तो एरर सिग्नल अगर पॉजिटिव आया है तो 3 पे अगर एरर सिग्नल हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं तो हमने फिर n की जगह वो वैल्यू पुट करवाई, तो उससे हमारा क्या आ गया, डेल ऑफ 2। डेल ऑफ 2 अभी अपने निकाला है, वो क्या आया है, माइनस डेल ऑफ 0 इंटू में 1 माइनस डेल ऑफ 0 आ जाएगा, प्लस डेल ऑफ 0 इंटू -1 माइनस। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डेल ऑफ 2 की वैल्यू आपने निकाली है माइनस डेल ऑफ 0, ये क्या आ जाएगा आपका, ये डेल ऑफ 0 से डेल ऑफ 0 कैंसिल हो जाएगा, अगेन इट विल जनरेट अ 0। इट मींस 3 पे उसने अगेन 0 जनरेट किया है, तो 3 पे उसकी वैल्यू अगेन क्या रहेगी, 0 रहेगी यहाँ पे। क्लियर? इट मीन्स यहाँ पे दो लगातार पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे दो लगातार नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स उसका सीक्वेंस आपका चेंज हो रहा है। क्लियर? ठीक है, जो कि आपको लगातार प्लस माइनस डेल्टा की फॉर्म में मिल रहा था। ठीक है, अगेन क्या किया आपने, एन की जगह 4 पुट करवाया, 4 पे आपको वो अगेन एरर सिग्नल क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है। 3 पे भी पॉजिटिव था और 4 पे भी क्या आपका एरर सिग्नल पॉजिटिव क्यों है, देख लेते हैं एक बार फिगर में। 4 पे एरर जो आपका इनपुट है वो आपका स्टेयरकेस से कम है। अगर इनपुट स्टेयरकेस से कम है तो वो पॉजिटिव दिखाएगा, अगर इनपुट स्टेयरकेस से ज्यादा है तो क्या दिखाएगा, नेगेटिव दिखाएगा। तो यहाँ पे 4 पे भी आपका एरर सिग्नल क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर 4 पे एरर सिग्नल पॉजिटिव आ रहा है तो हमने उसी इक्वेशन के अंदर, स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर एन की जगह 4 पुट करवाया। 4 पुट करवाने पर आपको ये वैल्यू मिली, जिसमें आपने डेल ऑफ 3 अभी निकाला है, वो आपका क्या है, इक्वल टू 0 आया। तो 0 से किसी फंक्शन से करेंगे तो 0 आएगा, तो इट मीन्स वो आपकी वेव फॉर्म क्या करेगी, 4 पे पॉजिटिव की तरफ जाएगी। तो 4 पे आपकी वेव फॉर्म
4 पे आपकी वेव फॉर्म अगेन पॉजिटिव की तरफ गई। क्लियर? अगेन क्या किया 5 पे आपका एरर सिग्नल क्या दिखा रहा है, क्योंकि वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ेगा। अगर वो घटता यानी कि तो वो माइनस आता, लेकिन वो लगातार 5 पे बढ़ रहा है, प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा। अगर वो बढ़ रहा है तो वो आपका पॉजिटिव एरर सिग्नल जनरेट करेगा। अगेन आपने 5 की जगह 4 पुट करवाया तो आपको ये 2 डेल ऑफ 0 मिला। इट मीन स्टेप साइज जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, 5 पे 2 डेल ऑफ 0 हो गया है। तो ध्यान से देखिए फिगर के अंदर 5 पे आपका एरर क्या हो गया है, डेल ऑफ 0। हर बार आपका डेल ऑफ 0 की सीक्वेंस से चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अब वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया 2 डेल ऑफ 0 विच इज नियर बाय योर इनपुट सिग्नल। इट मीन्स योर staircase follow your input signal, so that very much difference will be covered by your 2 del of 0. Again that will be covered by 3 del of 0. Again that will be covered by 4 of del of 0. So by the use of these simple mathematical analysis, you can see that by the use of step size control method, your staircase signal will be follow with your input signal, so that error of your slope overload noise will be removed by the use of your adaptive delta modulation. So again you can come with your match filter and its property. What do you mean by match filter? मैच फिल्टर में क्या होता है कि कई बार जो हमारी नॉइज होती है, लाइक जो फिल्टर होता है यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ पल्स सिग्नल ऑफ नॉन वेवफॉर्म दैट इज इमर्स्ड इन अ एडिटिव नॉइज। यानी कि मैच फिल्टर से जो हमारा सिग्नल एडिटिव नॉइज के इफेक्ट में आया है उसको हमने मेजर करके दिखाना है कि वो कितना आया है। क्लियर? तो अगर उसके अंदर हमने नॉइज के इफेक्ट को कम करना है तो हमें सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। क्लियर? तो नेक्स्ट हम इसके अंदर ही पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉइज एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। क्लियर? तो हमने क्या किया, दैट इज अ सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर मैच फिल्टर। क्लियर? तो हमने यहाँ पे इनपुट पे एक सिग्नल जी ऑफ टी दिया है, जिसको हमने स्टार्टिंग में कुछ नॉइज के इफेक्ट में इनपुट सिग्नल के अंदर हमने कुछ नॉइज ऐड कर दिया है, तो हमें क्या मिलेगा एक्स ऑफ टी। उस एक्स ऑफ टी सिग्नल को हमने लीनियर टाइम इनवेरिएंट फिल्टर के थ्रू क्या किया है, पास किया है। लीनियर टाइम मतलब कि वो टाइम के अकॉर्डिंग लिनियरली वेरी करता है। तो हमारा जो एक्स ऑफ टी है एक्चुअल में वो क्या है, जी ऑफ टी प्लस में डब्ल्यू ऑफ टी। क्लियर? ठीक है? तो क्या होगा हमारा यहाँ पे, अगर आपने किसी इनपुट को किसी फिल्टर के थ्रू पास करवाया है, सो दैट विल बी फॉलो सम ट्रांसफर फंक्शन हियर। सो एच ऑफ टी इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, एक्स ऑफ आउटपुट बटे में इनपुट मीन्स वाई टी बाय में एक्स टी। लेकिन आपने यहाँ पे वाई एस की वैल्यू निकाल रखी है, तो उधर जाके टर्म क्या हो जाएगी आपकी मल्टीप्लाई। ऊपर से आपने टाइम डोमेन को किस में लिखा है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो टी को आपने किस में चेंज कर दिया है, एस में चेंज कर दिया है। तो ये आपका वाई एस की फॉर्म में आउटपुट आ गई है यहाँ पे। क्लियर? ठीक है? फिर आपने क्या किया, लाइक अगर आपको यहाँ से ओरिजिनल सिग्नल रिकवर करना है तो आप यहाँ पे टेकिंग इनवर्स ट्रांसफॉर्म फॉर गेटिंग योर ओरिजिनल सिग्नल, यानी कि जो एआईएस का इनवर्स ट्रांसफॉर्म लीजिए। अगर आप इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या देखेंगे कि आपका जो वाई ऑफ टी है वो एक्चुअल में क्या है, दैट इज जी नोट टी इंटू प्लस में एन ऑफ टी। इट मीन्स यहाँ पे वाई टी को एक्चुअल में जो आउटपुट आ रही है उसमें कुछ नॉइज ऐड होके मिली है हमें, तो उस आउटपुट को उसने यहाँ पे, यहाँ अगर वो जी ऑफ टी है, क्लियर, तो यहाँ क्या होगा आपका, आफ्टर एलटीआई फिल्टर के बाद क्या होगा, जीनो टी होगा। जीनो टी प्लस में क्या होगा, कुछ नॉइज के साथ ऐड होगी। ठीक है? तो उसने क्या लिखा है, सो वाई ऑफ टी इज इक्वल टू जीनो टी इंटू में एन ऑफ टी। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इनपुट सिग्नल प्लस नॉइज मिलेगी। तो इनपुट सिग्नल को उसने जीनो टी में चेंज कर दिया, प्लस में क्या किया, नॉइज क्या है डब्ल्यू टी। क्लियर? ठीक है? तो वो फंक्शन उसने यहाँ करके दिखाया हुआ है। ठीक है? अब हमने क्या निकालना है, उस से ड्यू टू बिहेवियर ऑफ द फिल्टर इज लीनियर, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट योर सिग्नल टू नॉइज रेशियो विल बी कैलकुलेटेड बाय जो आउटपुट पे एडिटिव नॉइज की फॉर्म में सिग्नल आया है, दैट इज जीनो टी बटे में प्लस में नॉइज आई है। तो अगर हम इनपुट सिग्नल, ठीक है, का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम कर दें बाय वे नॉइज, नॉइज का भी क्या किया हुआ है, स्केयर इनटू में डीटी किया हुआ है। सो दैट्स फाइन, जो ये वाला स्केयर दोनों का क्या किया, स्केयर किया है। सो दैट्स फॉर्मूला फाइंडिंग योर सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट अ ऑप्टिमम वैल्यू, कि उसकी ऑप्टिमम वैल्यू क्या होगी जिसपे आपका जो नॉइज है वो आपके सिग्नल पे कम इफेक्टिव हो।
क्लियर, यानी कि आपके सिग्नल की पावर इतनी ज्यादा हो जाए कि उसके रिस्पेक्ट में आपकी नॉइज बहुत ज्यादा कम हो जाए। वैसे भी नॉइज आपके डिनोमिनेटर में है, तो आपको नॉइज वेक्टर को कम करना है और सिग्नल पावर को क्या करना है, ज्यादा करना है। अगर नॉइज इतनी ज्यादा कम हो जाएगी तो सिग्नल पावर उतनी ही बड़ी होगी और उसके कंपैरेटिवली आपका सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। क्लियर, तो उसने ये लिखा हुआ है कि हम सिग्नल की पावर को इस तरह से इंक्रीज करेंगे तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा उसके अंदर। क्लियर, तो हमने क्या किया यहाँ पे, लाइक आपने जो इनपुट है उसको आपने जी ऑफ टी लिखा था, उस जी ऑफ टी का आपने ट्रांसफर फंक्शन लिया तो आपका आया जी ऑफ एफ। ऊपर से आपका जो आउटपुट की फॉर्म में ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है, आपने उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। क्लियर, तो हमने क्या किया, जो जी नोट टी है, एक्चुअल में जी नोट टी जो आउटपुट में मिल रहा है हमें, वो हमारा वाई टी था। वाई टी आपकी आउटपुट आ रही है, ठीक है, और वाई टी जो आउटपुट आ रही है हमें, उस वाई ऑफ एस को आपने जी नोट टी में चेंज कर दिया, इनटू में एच एस को एच एफ और एक्स एस को जी एफ की फॉर्म में चेंज कर दिया। क्लियर है, अब इसका आप क्या लेंगे, इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेंगे। जब इसका आप इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपका क्या होगा, जी नोट टी का जी नोट टी, यहाँ पे लिमिट आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी एच ऑफ एफ इंटू में जी ऑफ एफ इंटू में ई रेज़ टू पावर माइनस जे पाई एफ टी इंटू में डी एफ आ जाएगा। क्लियर, अब आप क्या लेंगे कि एट टी इज इक्वल टू टी पे, क्लियर, तो टी इज इक्वल टू टी पे करने पर आपका क्या होगा, जी नोट का जी नोट टी का स्केयर हो जाएगा, एच एफ इंटू में एच एफ और लिमिट आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी एच एफ का एच एफ जी एफ का जी एफ, और यहाँ पे लाइक इसका क्या हो जाएगा, सेम फंक्शन से स्केयर हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि अगर टी इक्वल टू टी करोगे, क्लियर, तो दो फंक्शन आपके आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो दैट शोज योर सिग्नल पावर। क्लियर, ऐसे हम नॉइज पावर निकालेंगे तो नॉइज पावर एट द आउटपुट क्या आई है आपकी, दैट इज n0/2 एच एफ स्केयर। ठीक है, सो दैट विल बी शो योर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ योर इनपुट और दैट इज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एट योर आउटपुट। क्लियर, तो हमने यहाँ पे सिग्नल भी निकाल लिया है और यहाँ पे हमने नॉइज भी निकाल रही है। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, इस नॉइज का हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, हमने इसकी एक्सपेक्टेशन से इसको लाइक ओवरऑल किया, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, दैट इज n0/2 अगेन माइनस इन्फिनिटी एच एफ स्केयर इंटू में डी एफ। क्लियर, अब आपने आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए, सिग्नल पावर बटे में नॉइज पावर चाहिए, या आपने सिग्नल पावर कैलकुलेट की है और ये वाली क्या आई है आपकी नॉइज पावर। आप उसको आपकी जो लाइक वी एन एन रिप्रेजेंट योर सिग्नल टू नॉइज रेशियो, तो आपने सिग्नल पावर बटे में नॉइज पावर की वैल्यू को यहाँ इक्वेट करवाया है। लेकिन बाय द यूज ऑफ स्क्वेयर्स इनइक्वालिटी, दैट इज अ स्क्वेयर्स इनइक्वालिटी लॉ होता है, जिसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि अगर आप किसी दो ट्रांसफर फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन जब उन ट्रांसफर फंक्शन को अलग करोगे तो जो आपकी मल्टीप्लिकेशन है और जो आपका अलग अलग फंक्शन आए हैं वो हमेशा क्या होंगे, ज्यादा होंगे रादर देन कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। सो दैट सेज योर स्क्वायर्स इनइक्वालिटी इक्वेशन। ठीक है, तो हमने क्या किया, जस्ट कुछ भी नहीं किया, आपने जो सिग्नल पावर बटे में नॉइज फॉर्मूला यहाँ इक्वेट किया था, उसमें हमने इसकी वैल्यू को अलग अलग क्या किया हुआ है, शो किया हुआ है बाय द यूज ऑफ दैट। ठीक है, तो हमने इसकी जगह, इस ऊपर वाले फॉर्मूले की जगह ये प्लेस करवा दिया है, क्योंकि ये पावर क्या है, बड़ी है, सिग्नल की पावर बड़ी है। एज अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो रादर देन अगर आप इसको अलग अलग ले रहे हो, तो पावर बड़ी होनी चाहिए, तो इसलिए हमने इसको यहाँ अलग अलग रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जब मैंने उस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट किया तो आपकी ये टर्म कुछ कैंसिल हो गई है, ओनली क्या बचेगा, n0/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2n0/2 जी एफ स्केयर इंटू में डी एफ, जो कि क्या शो कर रहा है कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फिल्टर। ये रिस्पॉन्स आ गया आपका फिल्टर इन टर्म्स ऑफ योर सिग्नल टू नॉइज रेशियो विल शो दैट द फिल्टर इज ऑप्टिमाइज्ड ऑन दिस वैल्यू, यानी कि जब आप इस वैल्यू पे ऑप्टिमाइज होगे तब आपको फिल्टर क्या करेगा, मैक्सिमम रिस्पॉन्स करे शो करेगा फॉर द इनपुट एज पर योर इनपुट। अब यहाँ पे उसने उस चीज को कैलकुलेट करके भी दिखाया हुआ है कि आपको पता है कि आपका जो ऑप्टिमम वैल्यू होती है फिल्टर की, दैट इज इक्वल टू योर के जे, जे का जे की हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वैल्यू ली हुई है इनटू में e पावर माइनस जे पाई टू एफ टी लिया हुआ है। क्लियर, दैट इज द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ योर फिल्टर। Clear, so that optimum value will be represented by your again you can write this equation h optimum t
एफ को आपने अगेन क्या किया है, यही फ्रीक्वेंसी डोमेन में वैल्यू आई है ये वाली। अगर आप उसको टाइम डोमेन में चेंज करेंगे तो एफ की जगह टी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही अगेन टेकिंग इनवर्स ऑफ योर माइनस इनफिनिटी g star is to power minus j 2 pi f t minus t, because that will be having a impulse function. You can say impulse function response of an match filter, जो कि क्या आ जाएगा, kg t minus t आ जाएगा। clear? So as per the property of your match filter, so that derivation will be derived with the help of your bolo, again you can come with your noise calculation, or you can say properties of your match filter. So that properties of match filter, we can see that the peak pulse signal to noise ratio of a match filter depends only on the ratio of signal energy by may power spectral density of your white noise. It means signal power but may noise power, that will be show your properties of your match filter. So we can done the analysis for your signal power and your noise power with the help of that phenomena. Here we use the H optimum filter having with input G of F in frequency domain and getting your output G naught F. So that's why we mention here G naught F is equal to H of F into my ZF. So here we taking the complex value of your G of F, that will be shown by your आपने H optimum की वैल्यू को पीछे लिखा है, that is complex conjugate into में raised to power j 2 pi f t। तो हमने इस H optimum की वैल्यू को जो आपने यहाँ राइट की हुई है, इसको सिंपली क्या किया है, यहाँ पुट करवाया इस वैल्यू को। ठीक है, यहाँ मैंने पुट करवा दिया इस वैल्यू को। ठीक है, तो आपके जब दो फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन को आप सिंपल फंक्शन से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो दैट विल बी चेंज इन योर मोड इनटू में रेज़ टू पावर j 2 pi f t। ठीक है, एंड t will be taking your sample at capital T, so that's why we mention here t is equal to t। again you taking the inverse Laplace, अगर इसका inverse लेंगे आप Fourier, तो again you can finding the limit from your minus infinity to infinity gf square e raised to power j 2 pi f t, and again you multiply with your same function at t is equal to t। so both of the function will be cancel out each other, so here we getting your g naught t is equal to gf square, so that is your expected value of your इनपुट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये आपकी इस पूरी टर्म को आपने ई से चेंज कर दिया, सो दैट इज एनर्जी ऑफ योर इनपुट सिग्नल, और यू कैन से इनपुट सिग्नल। क्लियर? सो अगेन यू फाइंड द एनर्जी ऑफ योर नॉइज सिग्नल। ठीक है, so that energy will be you can find g naught t is equal to ke। if you taking the square of the signal, you will be value the k is equal to e square। क्लियर? अगेन योर फिल्टर विद योर, आपकी पहले फिल्टर के पास इनपुट थी, उसके अकॉर्डिंग आपने जी नोट एफ निकाला। क्लियर? अब आपकी फिल्टर के पास क्या है, नॉइज है, तो उसके अकॉर्डिंग जब आप नॉइज की फॉर्म में निकालेंगे, दैट विल बी रिप्रेजेंट बाय योर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ योर नॉइज इनपुट, दैट इज इक्वल टू n0/2। so as per in my previous analysis, I will mention the noise power here n0/2 hf square into my df, but we are taking the average value of noise, so that's why we're taking the square of these values। so by taking your inverse Laplace, you can mention here again n0/2 h optimum f square into my df, and h optimum filter will find the equation as per your previous analysis। so here we're taking the square of these values, so that's why that is k square। एनर्जी की फॉर्म में नॉइज निकालनी है, इनटू में क्या आ जाएगा आपका, लाइक एच ऑप्टिमम को आपने क्या बोला है, के जी एफ ई रेज़ टू पावर जे 2 पाई एफ टी इंटू में एफ टी। क्लियर? तो आपने क्या किया, यहाँ पे इसकी जगह ये वैल्यू इक्वेट करवाई है, तो सिंपली इस फंक्शन को आपने क्या बोला है, दैट इज कॉल्ड योर जीएफ। तो इस फंक्शन को आपने जीएफ में चेंज किया। क्लियर? तो इस फंक्शन को आप किस फॉर्म में लिखेंगे, बाय द यूज ऑफ दीज। ठीक है, दैट इज के स्क्वायर n0/2 इंटू में ई हो जाएगा। क्लियर? के स्क्वायर n0/2, इस पूरे फंक्शन को आपने क्या बोला है, अभी पीछे एनर्जी बोला है, एनर्जी ऑफ द सिग्नल, तो मैंने यहाँ पे किससे चेंज कर दिया, एनर्जी ऑफ द सिग्नल से चेंज कर दिया। तो आपका नॉइज का जो मैक्सिमम एनर्जी आई है वो ये वाली आई है, और सिग्नल की मैक्सिमम एनर्जी कौन सी आई है आपकी, ये वाली आई है। तो आप सिग्नल एनर्जी को अब नॉइज एनर्जी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सो दैट विल बी शो योर के स्क्वायर n0/2 इंटू में ई। इसमें अब कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगी और फाइनल वैल्यू आपको बचेगी 2e by में n नोट। सो
हम ये कह सकते हैं कि आपके लास्ट पैरामीटर में कोई भी इनपुट सिग्नल नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स आपने मैच फिल्टर के यूज से आपकी इक्वेशन को इनपुट के इंडिपेंडेंट बना लिया है। इट मीन्स इनपुट पे वेरिएशन आने पर that will be not affected by your match filter, and you're getting the signal to noise energy at a maximum power. So here the noise will be totally, you can say, very much removed in the case of your match filter. So also the match filter operation all frequency component in a phase when t is equal to t, called spectral phase matching, and the amplitude of the output at t is equal to t become maximum. That will be noticed in my previous calculation. And also you can find the optimum value of signal to noise ratio at t is equal to t. So that is a simple mathematical analysis of your match filter. You can say finding the property with the help of your signal to noise ratio at maximum value. Again, you can clear the concept of your inter-symbol interference with the help of your PAM. You can say pulse in case of your baseband transmission. You can say pulse amplitude modulated signal. तो हमने क्या पढ़ा है कि जो PAM सिग्नल होता है, that is a very best suitable technique है modulation की for converting your analog signal into discrete one. So that is the most efficient in terms of power and bandwidth. But in case of your PAM, you amplitude of the transmitted pulse is varied in discrete manner in accordance with your given digital data. So I will show a simple diagram of your PAM signal. Here we see that your first we using the source, okay, which can convert your input data at a bit duration. Say stand for k is equal to TB, and k stand for plus minus 1 plus minus 2 and so on. Again the KTB bit duration output will be represented by your BK, that is going to a line encoder, okay, that encodes that particular bit, and after that it will be changed to your AK, and that will be passed to a filter, okay, having with transfer function g of f. If BK is symbol 1, अगर BK पर symbol 1 आ रहा है, इनकी प्लस 1 आ रहा है, तो अगर BK पॉजिटिव है तो प्लस 1 जनरेट करेगा, और अगर BK नेगेटिव है तो वो माइनस 0 रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमें जो ट्रांसफर फिल्टर है वो हमें क्या जनरेट करेगा, वैल्यू जनरेट करेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इनटू में a ऑफ k इनटू में बिट ड्यूरेशन दैट इज y ऑफ t माइनस के टी बी। अब हमने इसकी आउटपुट को यहाँ से किसको दिया है, लीनियर चैनल को अप्लाई किया। चैनल का अपना एक ट्रांसफर फंक्शन होगा दैट इज कॉल्ड h ऑफ f. सो दैट h ऑफ f इज इक्वल टू x ऑफ आउटपुट इज x ऑफ t, दैट इज h ऑफ f इनटू में s ऑफ t। क्लियर? यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसके बाद आपने सेम रिसीवर फिल्टर से पास किया। रिसीवर फिल्टर में हमें आउटपुट क्या मिलेगी, y ऑफ t। y ऑफ t क्या होगी आपकी, x ऑफ t इनटू में जो इसका ट्रांसफर फंक्शन होगा दैट इज योर g ऑफ t। क्लियर? या आइदर q ऑफ t, दैट विल बी रिप्रेजेंट बाय योर u, कि आपने इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या ले रखा है। तो इस तरह से दैट इज अ मॉडल ऑफ योर कन्वर्टिंग योर पैम मॉड्यूलेशन एंड योर डीमॉड्यूलेशन। सो हमने क्या किया, सिंपल क्या किया, कुछ नहीं किया। हमने इंटर सिंबल इंटरफेरेंस के इफेक्ट को नोटिस करने के लिए, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस एक्चुअल में होती क्या है कि जब आपका किसी पार्ट में आपका जो फिल्टर है वो एज पर दी पैरामीटर रिस्पॉन्स ना शो करे, इट मीन वो फिल्टर प्रॉपरली वर्क ना करे, तो दैट विल बी शो योर इंटर सिंबल इंटरफेरेंस एट द आउटपुट ऑफ योर पैम आउटपुट। इट मीन्स आपका जो सिग्नल है वो करप्ट हो जाएगा इन विद द हेल्प ऑफ योर इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। क्लियर? तो हमने क्या किया, सिंपल जहाँ से फिल्टर का सेक्शन है, 3 ब्लॉक हैं, इन तीनों ब्लॉक को कंबाइन करके एक सिंगल ब्लॉक से शो किया है। ठीक है? तो जब मैंने तीनों ब्लॉक को कंबाइन किया तो इनपुट तो आपकी क्या मानी जाएगी, ए ऑफ के, और उस तीनों ब्लॉक को उसने क्या बोला है, म्यू पी ऑफ एफ। उसके बाद यहाँ पे आपकी आउटपुट क्या आई है, वाई ऑफ टी। वाई ऑफ टी के बाद आपने एक डिसीजन मेकिंग डिवाइस लगा लिया। अगर आपका इनपुट जो है वो उस डिसीजन मेकिंग डिवाइस की वैल्यू आपने थ्रेशोल्ड के साथ कंबाइन की हुई है, अगर आपका जो इनपुट सिग्नल है जो भी ड्यूरेशन टीबी से आ रहा है, अगर वो उसकी वैल्यू डेल से ज्यादा है तो 1 जनरेट करेगा आउटपुट पे, अगर उसकी वैल्यू डेल से कम है तो वो क्या जनरेट करेगा, 0 जनरेट करेगा। इट मीन्स आपका जो ये पूरा 3 फंक्शन है दैट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ योर g of t, h of t and your q of t. So here you mention g of t, h of t and q of t.
क्लियर। सो अब हमने क्या निकालना है, इस मैथमेटिकल एनालिसिस से हमने इंटर सिंबल इंटरफेरेंस निकालनी है कि यहाँ से कैसे आपने निकाली है, प्लस आपका नॉइज का इफेक्ट निकालना है, ठीक है, कितना रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमें पता है कि हमारा जो y ऑफ t है आउटपुट पे, एज पर योर दैट फिगर y ऑफ t जो है वो क्या मिल रहा है हमें, दैट इज म्यू, म्यू तो बाहर आएगा इनटू में ए के, ठीक है, इनटू में बिट, जो आपका पल्स है वो एक बिट ड्यूरेशन से आ रहा है और वो इम्पल्स फंक्शन के रिस्पॉन्स में है, सो दैट्स व्हाई वी मेंशन हियर टी माइनस के टी बी, प्लस में क्या आ रही है आपकी यहाँ से नॉइज आ रही है। क्लियर। तो आपने क्या किया, आपको पता है कि टी इज इक्वल टू क्या है, आई टी बी है, तो हमने टी की जगह क्या पुट करवा दिया, आई टी बी पुट करवा दिया। क्लियर। तो जब मैंने टी की जगह यहाँ आई टी बी पुट करवाया तो यहाँ से आपका टी बी वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी, और अंदर क्या रह जाएगा, आई माइनस के, प्लस में एन इंटू में टीबी। क्लियर। तो जब आपका अब इस इक्वेशन के अंदर अगर आई इज इक्वल टू के है तो ये पूरा पैरामीटर क्या आ जाएगा, ए के इंटू में ए आई इंटू में पी जीरो आ जाएगा, जो कि क्या शो कर रहा है, दैट रिप्रेजेंट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ith सिग्नल ट्रांसमिटेड बिट, यानी कि जो आपने बिट ट्रांसमिट किया है उसकी वैल्यू ये शो कर रहा है। क्लियर। अगर ये आई की वैल्यू के इक्वल नहीं है तो ये शो करेगा आपका इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, और दैट अलग पोर्शन जो ये एन आपको शो हो रहा है दैट विल बी शो योर नॉइज। सो दैट इज अ सिंपल कैलकुलेशन टू फाइंडिंग द ओरिजिनल सिग्नल, how much affected with your inter symbol interference plus your noise. So that is a simple calculation which we can find in my video. So we can say that your value will be exact value, that is mu ai, that is mu ai. So the under ideal condition the transmission bit is recorded correctly, यानी कि जब आइडल कंडीशन मान के चलेंगे तो ना तो उसमें इंटर सिंबल इंटरफेरेंस होगी और नॉइज होगी। लेकिन अगर हम लाइक हमारी वेव हम आइडल कंडीशन के अकॉर्डिंग तो काम कर नहीं सकते हैं, तो हमेशा या तो इंटर सिंबल जो नॉइज होगी वो भी आपके आउटपुट पे प्रेजेंट होगी और आपकी नॉइज भी प्रेजेंट होगी। तो आपको कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैच फिल्टर, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस एंड एडाप्टिव नॉइज कैंसलेशन। तो आपको ये तीनों टॉपिक बड़े अच्छे से करने हैं। आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको रिवाइव कीजिए। अगर फिर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय वीडियो। हेलो आना बोलते नहीं।